Expresso, where we share about our Canadian experience. So guys, जब हमने ये जर्नी के बारे में सोचा था, कैनेडियन जर्नी के बारे में, so we were guided by some very good friends and likewise हम आज आपको गाइड करेंगे अगर आप भी अपनी कैनेडियन जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं. So there are two important steps that even before you start talking about job or anything in Canada, first दो स्टेप आपको पूरे करने हैं. एक है ECA और दूसरा है IELTS. इसके तो बोर्ड आपने इंडिया में हर जगह देखे ही होंगे. सो जो ECA है, ECA इज नोन एज एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसमें आपकी डिग्रीज को असेस किया जाता है, और IELTS आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है. ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इनके पॉइंट्स आपके CRS में ऐड होते हैं, जो कि एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है टू माइग्रेट और टू गेट योर PR फॉर कैनेडा. So guys, talking about ECA, which is educational assessment. अब इसमें क्या है कि ECA is done on basis of your education, and similarly those points are added to your profile in Express Entry. Ravneet can take over. I thought I'll never get a chance to speak. No, you always will. Well, you got great marks in speaking. Less than you though. Yes. Okay guys, so about ECA. Now educational credential assessment is conducted by many agencies in Canada. बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ये आपके डिग्रीज को, चाहे वो बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, उसे असेस करते हैं. उसको असेस करके ये यहाँ के कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में उनकी क्या वैलिडिटी है ये वो बताते हैं आपको. उसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स लगते हैं. So that means Ravneet, अगर मैंने मास्टर्स की हुई इंडिया से, इट माइट नॉट जस्ट बी इक्वल टू मास्टर्स इन कनाडा. Yes, there is a very big possibilities that your master's degree may well be demoted to a 4-year bachelor degree. So it depends on the agency that you are going to choose. There are many agencies which are doing this. A few of them are WES, and then there is ECS, IQAS. बट इन एजेंसीज के अलग अलग वेबसाइट्स हैं और इनके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हम डिटेल में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस. सो आई थिंक रवनीत, नाउ यू कैन फिल अस विद डिटेल्स कि ये दोनों स्टेप में से ECA जो है, एजुकेशनल असेसमेंट जो है, वो सबसे पहले क्यों कराना चाहिए? एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कराने में आपको लगेगा बहुत सारा टाइम और लगेंगे आपके बहुत सारे चक्कर यूनिवर्सिटी के. क्या 1-1.5 महीना, 2 महीने और कितना टाइम? नहीं जी, ये कम से कम 6 से 9 महीने भी ले सकता है. Oh gosh, okay. So this is the first step we take because this is the most time consuming process and it is dependent on a lot of external factors. बहुत सारी चीज़ें इसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. मान लीजिए कोविड ही हो गया, फिर उसका नाम नहीं मतलब. हाँ, इस सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसीलिए ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत है. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टैक्सिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस बिकॉज यू डोंट कंट्रोल द आउटकम. Yes. So okay, so what all agencies, Ravneet, are doing this evaluation for Canada purpose only? Okay, for immigration, these evaluations आप किसी भी एजेंसी से कराते हो, it holds a validity of at least 5 years. Oh, great. Yes. So there are many agencies which are doing this evaluation, but you have to be very selective as to which agency you are going to choose because depending on your degrees, some agencies may not recognize your university, others may, which is a case in one of such. I'll give you an example later. Okay, the agencies which these evaluations are getting done, most popular of them is WES, which is World Education Services, which is the most popular. They are the quickest. Yes. Upon receiving of your completed profile, they can take anywhere from 35 days to 40 days to give you an outcome. Whereas other agencies like ICAS and IQAS, they can take anywhere from 9 months to a year or more. So now when you're talking about 9 months, इसका मतलब है जी ये सब शुरू करने से पहले आपको अपने पासपोर्ट पे वैलिडिटी देखनी है कि आपका पासपोर्ट कितने टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि जब भी आप ये कैनेडियन जर्नी शुरू करेंगे, इट इज़ गोइंग टू टेक एवरेज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम से ECA टू टिल यू गेट टू योर PR स्टेज, या जब CRS जब इनके ड्रॉज निकलते हैं उसमें आपका नंबर आता है, या यू आर बीइंग सिलेक्टेड और आस्क्ड टू present an invitation or you're extended an invitation. So your passport validity, I will recommend, should be at least 3 years from the date you start your ECA process and you want to migrate.
these all are dependent on the details on your passport. So whatever forms you're filling, whatever wherever you are putting down your credentials in any manner, आपको ये चीज़ सर्टन करनी है कि वो जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट पे हैं वही रिफ्लेक्ट करें उन पे। और अगर वो नहीं है तो अपना एक एफिडेविट जरूर बना के रेडी रखें, क्योंकि कई होती हैं जो गर्ल्स आर unmarried when they got their education done, and then they got married and now they want to go to Canada, or together they want to aspire to reach Canada through this express entry. So for that what you need is आपका मिडिल नेम और आपका मैरिड नेम, इसका एक एफिडेविट नेम चेंज का जरूर बनाएं। कई बार क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे मेरा प्रभजीत सिंह बेदी है, इट माइट जस्ट बी प्रभजीत सिंह, so I have to get an affidavit done which says Prabjeet Singh Bedi and Prabjeet Singh are one and the same person, right? Yes. So I was telling you earlier about an example. There is a university in India called Sikkim Manipal University. Now the most popular of these sites, WES, does not recognize any degrees issued by Sikkim Manipal University. But on the other hand, there is another agency, IQAS or ICAS, which recognizes those degrees. तो आपको पहले वेबसाइट पे जाके ये देखना है कि आपकी जो कॉलेज है या आपकी जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं आ रहा। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई थिंक इज दैट आप कईयों की एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बिकॉज इंडिया इज ब्लेस्ड विद इज अ लैंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, सो इंडिया इज ब्लेस्ड विद द फैक्ट दैट आपकी डिग्री तमिल में है, हिंदी में है, संस्कृत में, तो आपको एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्टर के थ्रू उस डिग्री को पहले उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स को और उसको चेंज कराना पड़ेगा, उनको ट्रांसक्राइब कराना पड़ेगा विद अ रजिस्टर्ड ट्रांसक्रिप्टर, राइट? Yes, registered translator should try, translate your degrees into English, and then They will be doing eventually this. the process happens. Right. Going further, Ravi. Okay, so ICAS is one of the agencies which conducts these education assessments. Now, the price range on most of these agencies is round about the same ballpark. ICAS takes $210 for the assessment. WES takes $214, which is the basic package for assessment, and so on. But they are in the same ballpark. So यहाँ पे भी पैकेजेस हैं, तो अगर WS का प्रीमियम पैकेज क्या होगा? WES का एक प्रीमियम पैकेज भी है, which adds a couple Value? of things. Yes, it does add value, because WES का प्रीमियम पैकेज में you have to pay around $35 over and above the basic package, और उसके अंदर they will do the processing of your transcript, the assessment. Other than that, they will hold on to your assessment and forward it to any educational institution if you need it. So Like what that. period of time will they hold it? That period of time is too debatable. Maybe if I had taken that package, I would know, but I So we did didn't not. take it because we were very sure of what we No. want out of the At that evaluation. point of time, there was no such package available when we did our. Okay, so WS के special package में एक तो आपने बताया they will hold on to your degree for your credentials for a longer period of time. Yes, they digitally, store your credentials. and also And they also give you a digital badge, which is WES assessed badge, which you can display on your LinkedIn and on your social media, so that everybody knows that your credentials have been assessed great. and are at So it par stays with with you for a long WES. time. Yes, of course. So guys, once you've decided कि आपने किसके साथ जाना है, which of the three organizations आपने जाना है, obviously WS should be your choice because it is the fastest amongst the three, and we've also used WS. Now the only question is कि वो आपकी यूनिवर्सिटी उसमें रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, वो आप ज़रूर एक असेसमेंट कर लें। अच्छा, so what does WS do? What more can it do? ओके, ना WES की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलेंगे। एक है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आप किस ऑर्डर में भेजेंगे और कहाँ से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी जो डिग्रीज आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर ली हैं, आप उनकी असेसमेंट एक ऑनलाइन टूल के ज़रिए जान भी सकते हैं कि ये आपको एक आइडिया हो जाएगा, टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है। हाँ जी, Which is good. और तीसरा है कि अगर आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से कहीं से आपने किया है तो आपको GPA तो उन्होंने इशू नहीं किया हुआ, तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से अपना राउंड अबाउट GPA भी पता कर सकते हैं। ये टूल्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। Which is great. So now once you've decided कि भाई मैंने WS के थ्रू जाना है, so उसमें क्या है कि you have to now see कि जैसे हमारे केस में she was masters and I was bachelors. So मैंने अपनी बैचलर्स की इवेलुएट कराई और इन्होंने सिर्फ अपनी मास्टर्स की इवेलुएट कराई। सो आपको हमेशा अपनी हायर डिग्री को इवेलुएट कराना है टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द CRS कैलकुलेटर।
नाउ हाउ डज दिस वर्क आउट इज कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबसे पहले जाना है जहाँ से आपने डिग्री ली है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखना है कि क्या वो ये फैसिलिटी ऑनलाइन देते हैं या नहीं देते हैं। सो इफ़ दे गिव इट ऑनलाइन देन यू सॉर्टेड, फीस पे करें और अपनी डिग्रीज की वो ट्रांसक्रिप्ट सील्ड एनवेलप में वो लोग ऑटोमेटिकली वहीं से भेज देंगे अपनी यूनिवर्सिटी से। और अगर आप मेरी तरह हैं या इनकी तरह हैं, तो इन्होंने की थी ग्वालियर से, मैंने की थी गुरु गोबिंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, सो वी हैड टू गो टू आवर यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे खासे चक्कर लगे। अच्छे खासे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 तो लग ही जाते हैं, क्योंकि Right. कई बार यूनिवर्सिटीज़ अगर ये सर्विसेज यूजुअली ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर नहीं करती हैं तो आपको फिजिकली जाकर के अपनी ओरिजिनल मार्कशीट्स लेके जाने पड़ती हैं और वो फिजिकली उनको अपने रिकॉर्ड्स के साथ टैली करते हैं। उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं, उसमें उनको टाइम लगता है, तो आपको हो सकता है 1-2 चक्कर लगाने पड़े। Definitely, and everything comes at a price, so it will be costing you a lot. तो आपको चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, उसकी फीस भी जमा करानी पड़ेगी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाएंगी एंड दे हैव टू बी इन सील्ड एनवेलप्स। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वो नहीं भी भेजती हैं, आप जा भी रहे हैं वो कहेंगे आपको एनवेलप में सील करके आपको एनवेलप दे देंगे और वो कहेंगे कि आप भेज दें। अब ये भेजते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब भी भेज रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वो आप जब यूनिवर्सिटी के, या तो यूनिवर्सिटी में अगर आपकी पोस्ट ऑफिस है तो वहीं से भेजें, नहीं तो उसी के पोस्ट बॉक्स के नंबर से ही भेजें, क्योंकि WS चेक्स दिस कि ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आई हैं या आपने तो नहीं पोस्ट की हैं, तो वो नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स से ही भेजें। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि WES में जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स जाती हैं वो सील्ड एनवेलप में ही जाएंगी और यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएं। अगर यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करेगी भेजने के पैसे, पोस्टेज, एवरीथिंग, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जाती हैं। अगर दूसरा प्रोसेस है जो जैसे आपको प्रभजीत ने बताया, अगर वो लेते हैं तो उसमें आपको बियर करनी पड़ेगी सेंडिंग की कॉस्ट, विच कैन ऐड टू योर अदर कॉस्ट्स। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ कि नेवर एवर एवर सेंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू WES और एनी इवेल्युएटिंग एजेंसी, बिकॉज जो भी डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी एजेंसी में भेजोगे वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी असेसमेंट के बाद तक एंड दे विल कीप इट, they will not return it, so do not send your originals. Right. एक पॉइंट मैं और आपसे ये बताना चाहती हूँ कि there is a thing which has happened post pandemic where WES is also accepting digital variations of your transcript if they are sent through a secured university ID. Oh, great. Yes. So if that facility is right now also valid? That you will have to ascertain, because I don't think many universities in India are sending any digitally transcripted files. Okay, so आपके अपनी यूनिवर्सिटी भी चेक करना Yes, पड़ेगा। you have WS is to check accepting. with your university and with WES whether they are accepting this or not. But this was a provision there with pandemic. Right. So also friends, now you have to take care of in this part की जो अपनी हमारे इंडिया में ना आदत होती है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व और सिक्योर करके रखने की। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट कराते हैं। गाइस, नेवर डू इट। अगर आपने कनाडा आना है किसी भी कीमत पे लैमिनेशन नहीं कराएं। यहाँ आते ही अगर आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ कहीं देना पड़ जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, दे treat it as tampering with. Not that stands true not just for degrees, for your other papers related to your express entry, any documents you should not get it laminated, because they will consider it altered and tempered and they will not accept it. Guys, अब जैसे आपने यूनिवर्सिटी ने भेज दी, अब क्या करना है, अभी विंडो है, what you have to do is you have to regularly keep on checking for updates from all these organizations, क्योंकि ये लोग कई बारी आपकी कोई डॉक्यूमेंट उनकी तरफ को उनको ठीक नहीं लगा या पूरा नहीं है या पहुंचा नहीं है, दे विल कीप इट इन योर अकाउंट। सो यू हैव टू रेगुलरली कीप ऑन चेकिंग योर अकाउंट विद वॉट एवर क्रेडेंशियल असेसमेंट एजेंसी आपने ली है, उसके साथ आप रेगुलरली अपडेट चेक करते रहो, ताकि कोई भी उसमें अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कुछ है तो इमीडिएटली आप भेज सको। So guys, this is more or less the process which is there for आपके educational credentials assess कराने के लिए। Hopefully अगर आप इसे follow करेंगे तो आपका credential जल्दी आ जाएगा। And yes, ये सबसे पहला एक foundation stone है towards your Canadian built up journey. Now in the next video what you will be seeing is we'll be talking about IELTS, and let me assure you guys जो tips हम देने वाले हैं
वो बहुत ही क्रिटिकल है एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी सेंट्रिक टू द इंडियन एंड द साउथ एशियन माइंडसेट कि हम लोग आइल्स का जो ये एक तरीके से हुआ है या एक फियर होता है या एक माइंड में होता है कि भाई हमें आइल्स देना है, तो उसको लॉट ईजियर बनाने के लिए एंड वेट फॉर दैट वीडियो, इट विल बी रियली एक्साइटिंग एंड रियली हेल्पफुल. I hope you guys liked today's vlog and it helps you in getting the knowledge and starting your journey. Bye.